students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is Macromedia Flash 8. In this chapter, we will learn about Flash, starting the Flash 8, exploring toolbox, the menu bar, working with objects, creating a new Flash document, movie properties, the grid, the property inspector, creating first animation, grouping and ungrouping object, saving a Flash document, opening a फ्लैश डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली मैक्रोमीडिया फ्लैश 8 में क्या क्या फीचर्स होते हैं, किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं नया डॉक्यूमेंट, ओपन किस तरीके से करते हैं, वो आज आप जानने वाले हैं। अबाउट फ्लैश. Flash is an animation software package. It provides a versatile and easy way to create animation. Adobe Flash is a multimedia platform originally acquired by Macromedia and currently developed and distributed by Adobe Systems. Since its introduction in 1996, Flash has become a popular method for adding animation and interactivity to web pages. Flash is commonly used to create animation, advertisement to integrate video into web pages, and more recently to develop rich internet applications. Flash does not require programming skills and is very easy to learn. तो फ्लैश आपका बेसिकली एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक वर्सेटाइल यानी कि अलग अलग वैरायटी ऑफ चीज़ें आपको ही देता है, इजी वे देता है आपको एनिमेशन क्रिएट करने के। अडोब फ्लैश जो है एक मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है, ओरिजिनली इसको मैक्रोमीडिया ने एक्वायर करा था और करंटली ये डेवलप और डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है अडोब सिस्टम के थ्रू। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 1996 में, तब से लेकर अब तक ये बहुत ही पॉपुलर मेथड बन चुका है एनिमेशंस को ऐड करने के लिए और वेब पेजेस पे इंटरएक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए। फ्लैश जो है वो ज़्यादातर आपका एनिमेशन क्रिएट करने के लिए, एडवर्टीजमेंट और वीडियोस के इंटीग्रेशन के लिए यूज होता है। इसके अलावा जो फ्लैश है इसके लिए आपको ज्यादा कोई स्पेसिफिक नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान होता है ये सीखने के लिए। Know it. The file extension of a normal flash file is .fla and of a compressed file is .swf. तो नॉर्मल फ्लैश को जब आप सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन होता है .fla और अगर एक compressed फाइल होती है तो उसका एक्सटेंशन होता है .swf. Starting the Flash 8. To start the Flash 8, select Start, All Programs, Macromedia Flash 8. You will see the screen as shown. Click on Flash Document option. The Flash screen will appear. तो आपको अगर फ्लैश डॉक्यूमेंट 8 को यानी कि आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाएंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, उसके बाद आप मैक्रोमीडिया फ्लैश 8 पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर हो जाएगी, उसमें आपको क्लिक करना है फ्लैश डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे, फिर आपके सामने एक फ्लैश स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। The various elements which are displayed on the flash screen are menu bar. It makes the access to different program features very easy. Title bar, it displays the title of the page. Work area, it is an area that extends beyond the stage on all sides but is outside the frame. Timeline, it consists of division of frames arranged on a number grid. It is used to control and organize the content of the project by time. Frame, a frame is a single step of animation or a picture on the flash timeline. We can insert frames to increase the duration of an animation and remove frames to cut short the duration of the animation. Panels, they contain controls for the most commonly used functions in Flash. The panels are command sets grouped according to their functions. Its mission is to simplify and facilitate the command's use. Layers, a layer could be defined as one independent movie of only one level. That is to say, one layer contains its own timeline with endless frame. The objects that are at one layer share a frame and due to this fact they can get mixed up among themselves. Stage, it is the large white area where all objects are placed to create animation. तो आप जब एक Flash 8 को ओपन करते हैं तो वो विंडो ओपन होता ही सबसे पहले आपके पास एक मेन्यू बार आता है, उसमें आप अलग अलग फीचर्स जो होते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं उनको समझना, उसका एक्सेस आपके पास होता है। फिर आपका टाइटल बार आता है, वो आपको उस पेज का टाइटल डिस्प्ले करता है। वर्क एरिया आता है, ये आपके स्टेजेस का जो होता है सारे साइड्स पे, जिसमें आपके पास एक एरिया होता है जहां पर आप काम कर सकते हैं। फिर टाइमलाइन आती है, इस टाइमलाइन में देयर आर डिविजन्स ऑफ फ्रेम्स जो कि एक नंबर्ड ग्रिड में अरेंज होते हैं। ये आपका यूज करा जाता है कंट्रोल करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके जितने भी कंटेंट है आपके प्रोजेक्ट में टाइम वाइज। फिर आपका फ्रेम आता है, फ्रेम एक सिंगल स्टेप होता है एनिमेशन का या फिर पिक्चर का या एक फ्लैश
टाइमलाइन का। जितनी भी फ्रेम्स आपको इंसर्ट करने हैं, इंक्रीज करने के लिए अगर आपको ड्यूरेशन एनिमेशन की इंक्रीज करनी है, फ्रेम को ऐड कर सकते हैं, और ड्यूरेशन को कट शॉर्ट करना है तो आप फ्रेम्स को हटा सकते हैं। फिर आपके पैनल्स आते हैं, ये इन पैनल्स में आपके कुछ कॉमनली सेट कमांड्स होते हैं जो कंट्रोल किए जाते हैं आपके फ्लैश में। जितने भी पैनल्स होते हैं उसमें आपके अलग अलग फंक्शंस एक ग्रुप ऑफ कमांड्स में आपके फंक्शंस के अकॉर्डिंग सेट रहते हैं। इसमें आपका जो मिशन होता है सिंप्लीफाई करने का होता है और बाकी सारे फंक्शंस को फैसिलिटेट यानी कि कंटिन्यूड रखने का होता है। फिर आपकी लेयर्स आती है, जो लेयर होती है ये एक इंडिपेंडेंट मूवी होती है, लेवल वाइज होती है, जिसका मतलब है कि आपकी हर एक लेयरिंग में उसकी अलग एक अपनी टाइमलाइन होती है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक लेयर पे एक ऑब्जेक्ट होता है, एक फ्रेम होता है, जिसकी मदद से आपकी जितने भी अलग अलग आइटम्स हैं वो आपस में मिक्सअप हो सकते हैं। फिर आपका स्टेज आता है, ये एक बड़ा सा वाइट एरिया होता है जहां पर आप फाइनली अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। एक्सप्लोरिंग टूलबॉक्स। Toolbox. It contains all necessary tools required for drawing, painting, selecting and modifying picture. We all have used these tools for drawing different shapes and objects in Photoshop. These tools are similarly used in Flash too. So without wasting much of time, let's revise the use of tools and learn how to provide animation to an object designed by you in Flash. तो आपके कुछ टूलबॉक्स होते हैं, एनिमेशन क्रिएट करते हुए इन टूल्स की आपको फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ सकती है। सिंपली जिस तरीके से आपने आपके प्रीवियस मॉडल्स में आपने टूल बॉक्स का यूज करा था, जितनी भी चीजें आपकी वहां पर प्रेजेंट थी फोटोशॉप करते हुए, वैसे ही आपका यहाँ एनिमेशन में भी यूज होता है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टू सी कौन से टूल्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। पहला है आपका एरो टूल। दिस ऑप्शन अलाउज अस टू सिलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। वी कैन सिलेक्ट फिलिंग्स विद सिंगल क्लिक एंड बॉर्डर विद डबल क्लिक। Line tool, we can use line tool to draw straight lines. Pencil tool, using pencil tool, we can draw free form lines and different shapes as real as drawing with pencil. Brush tool, to get brush like stroke, one can use brush tool. Oval tool, it is used to draw circles and ovals. Rectangle tool, it is used to draw rectangles, round cornered rectangles and squares. Paint bucket tool, apply fillings to the created objects. Eraser tool, to remove or erase everything from an object, you can use eraser tool. Text tool, this tool is used to place text on the stage. Subselection tool, to select the objects, we use subselection tool. Lasso tool, to define the selection area either in the form of zigzag freehand shape or straight edged polygon shaped. Pen tool, this pen tool let us draw precise paths as straight line and curved lines. The line includes editable points, which mean one can change properties of lines after drawing them on stage. Eyedropper tool, this tool is used to get sample colors from existing shape by clicking on a file or outline. Ink bottle tool, this tool is used to change the attributes of the stroke outline of a shape. तो सबसे पहले आपका arrow tool आता है। किसी भी टाइप की आपको फिलिंग्स को अगर ऐड ऑन करना है तो ये आप यूज कर सकते हैं। सिंपली अगर आपको फिल करना है, आपकी कोई भी चीजों को सिलेक्ट करना है तो आप सिंगल क्लिक करेंगे, आपको बॉर्डर्स का सिलेक्शन चाहिए तो आप डबल क्लिक करेंगे। फिर आपका लाइन टूल आता है, आपको स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है तो ये टूल यूज होता है। फिर आपका पेंसिल टूल आता है, फ्री फॉर्म पेंसिल भी आती है आपकी और अलग अलग शेप्स भी आती हैं, जैसे आप रियल लाइफ में पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, इस टूल से भी आप सिंपली वैसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपका ब्रश टूल आता है। ब्रश टूल आपका स्ट्रोक के जैसे होता है, कोई भी एक ब्रश टूल को यूज करते हुए उसको यूज कर सकता है। फिर आपका ओवल टूल आता है, आपको अगर सर्कल्स ड्रॉ करने हैं और ओवल्स अगर ड्रॉ करने हैं तो आप इसका यूज करते हैं। रेक्टेंगल टूल का यूज आपको जब रेक्टेंगल्स या फिर राउंड कॉर्नर्ड रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स का यूज करना होता है तब आप बनाते हैं। फिर आपका पेंट बकेट टूल आता है, ऑब्जेक्ट्स में जब आपको कोई भी फिलिंग्स डालनी होती है तो आपका ये टूल यूज किया जाता है। फिर आपका इरेजर टूल आता है, कोई भी चीज आपको इरेज करनी है, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को हटाना है तो आप इरेजर टूल का यूज करते हैं। फिर आपका आता है सब सिलेक्शन टूल, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है तो आप सब सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं। फिर आपका लैसो टूल आता है, लैसो टूल आपको जिगजैग फ्री फॉर्म अगर शेप चाहिए या फिर स्ट्रेट एज्ड पॉलीगन शेप चाहिए तो आपका ये यूज होता है लैसो टूल। फिर आपका पेन टूल आता है, आपको प्रिसाइज स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे आप नॉर्मल आपके पेपर पे पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, सिंपली आप इसके थ्रू भी उसी फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। आई ड्रॉपर टूल, आई ड्रॉपर टूल यूज होता है जब आपको सैंपल कलर्स देखने होते हैं और आपके ऑब्जेक्ट्स में फिल इन करना होता है तो आपका आई ड्रॉपर टूल यूज होता है। फिर आता है लास्टली इंक बॉटल टूल, ये टूल आपका यूज होता है आपके जो ब्रश के स्ट्रोक्स होते हैं उसके एट्रीब्यूट्स को चेंज करने के लिए।
Know it. Flash was first known as Future Splash Animator and later was renamed by Macromedia as Flash. तो सबसे पहले जब फ्लैश को इंट्रोड्यूस करा गया था तो उसका नाम था फ्यूचर स्प्लैश एनिमेटर। लेटर जैसे ही इसको मैक्रोमीडिया ने अडॉप्ट कर लिया था, इसका नाम चेंज करके फ्लैश रख दिया गया। द मेन्यू बार. The menu bar is aimed to make access easy to different program features. Let's see the main sub-menus which you can access. Menu bar, description, file. It allows creating, opening and saving archives. It also enables to configure and print pages, etc. Edit, it is a classic menu that allows you to cut, copy, paste the objects as well as images or frames. It also allows you to customize some of the most common options of the program. View, apart from typical zooms, it also allows you to move the frames and scenes. It also includes the possibility to create a grid and some guides. These ones can be selected from the sub-menu grid and guides from where you can configure its options. Insert, it permits you to insert objects into the movie as well as new frames, layers, actions, scenes, etc. Modify, the option transform permits one to modify the graphics existing in a movie. Text, it is contents affect the addition of the text. Commands, allows administering the commands that we had saved in our animation to obtain other views from the Macromedia page or execute what we already have. Control, from here you modify the properties of the movie reproduction play, rewind, test, movie. Window, in addition to the classical options of displaying the windows, this menu includes shortcuts to all the panels. Help, from here we can access all the helps that Macromedia offers to us from the current manual up to the action script, going through tutorials, guided sections, etc. अब आपके मेन्यू बार में कुछ ऐसी आपके मेन्यू बार के ऑप्शंस होते हैं जो आपको हेल्पफुल होते हैं जब आप एनिमेशन को बनाते हैं। पहला आपका फाइल आता है। फाइल में आप अपनी किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, नई फाइल को, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं आपके आर्काइव्स को। ये आपको ये भी चीज़ें एनेबल करता है कि आपके जो प्रिंटिंग पेजेस है आप उसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। फिर आपका एडिट आता है। दिस ऑप्शन अलाउज यू टू कट, कॉपी एंड पेस्ट द ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज द इमेजेस या फिर आपके जो फ्रेम्स होते हैं उन सबको आपको एडिटिंग करने का ये मौका देता है। इसके अलावा ये आपको कस्टमाइज भी करने देता है कुछ आपके कॉमन ऑप्शंस जो आपके प्रोग्राम्स में अवेलेबल होते हैं। फिर आपका व्यू आता है। अपार्ट फ्रॉम द टिपिकल जूम्स, जो आपके जूम्स होते हैं उसके अलावा ये आपको अलाउ करता है आपके फ्रेम्स और सीन्स को मूव करने के लिए। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द पॉसिबिलिटी कि आप एक ग्रिड को भी क्रिएट कर सकते हैं और कुछ गाइड्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं, या आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके सब मेन्यू ग्रिड और गाइड्स में जहां से आप इन ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर यानी कि इसकी सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं। फिर आपका इंसर्ट आता है। इंसर्ट वाले ऑप्शंस थे, आप इस मूवी में जो भी चीज़ आपको इंसर्ट करनी है, फ्रेम्स हो गया, लेयर्स हो गया, कोई भी चीज़ को आप इंसर्ट कर सकते हैं। मॉडिफाई, आपका एक ऑप्शन होता है ट्रांसफॉर्म ऑप्शन। इससे आप अपने ग्राफिक्स जो आपकी एग्जिस्टिंग मूवी में एग्जिस्टिंग ग्राफिक्स हैं उसको आप मॉडिफाई यानी कि चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फिर आपका टेक्स्ट आता है। इसमें आप टेक्स्ट को ऐड ऑन करना है, हटाना है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कमांड्स में आपके कुछ कॉमन कमांड्स आते हैं जैसे कि आपके एनिमेशन सेव करने का कमांड होता है, अलग अलग व्यूज़ होते हैं आपके एनिमेशंस के मैक्रोमीडिया पेज से, या फिर एग्जीक्यूट करना होता है आपको जो आपके पास ऑलरेडी है तो वो आपके कमांड ऑप्शन से होता है। फिर आपका कंट्रोल आता है। कंट्रोल से आपकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मूवी रिप्रोडक्शन की, प्ले की, रिवाइंड की, पॉज की, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल पैनल से करते हैं। फिर आपका विंडो आता है। आपके क्लासिकल ऑप्शंस जो आपके विंडोज में डिस्प्लेड रहते हैं उसके अलावा इस मेन्यू में आपके पैनल्स के सारे शॉर्टकट्स भी अवेलेबल होते हैं। लास्टली इज द हेल्प। मैक्रोमीडिया में जितनी भी आपके हेल्प वाले सेक्शन होते हैं देयर आर सम फीचर्स जो हेल्पफुल रहते हैं आपके लिए। इसमें आपके ट्यूटोरियल्स आते हैं, गाइड्स आती हैं और आपके कुछ स्क्रिप्ट्स भी आती हैं, ऑडियो स्क्रिप्ट जो आपको एनिमेशन बनाने के लिए हेल्प कर सकती हैं, तो वो आपके हेल्प सेक्शन में आती हैं। Working with objects. Before you learn to animate an object, let us quickly learn how to create objects using different tools. For drawing straight lines, step 1, click and select line tool. Step 2, move the mouse pointer over the stage area until the pointer changes from arrow to plus sign. Step 3, drag to draw a line of your desired length.
Step 4, release the mouse button. Step 5, the line will appear on the stage as desired. Similarly, we can draw a free form line, custom line with pencil tool. तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे काम करना है, पहले तो आपको ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कैसे करना है वो आना चाहिए. सबसे पहले आपका है, अगर आपको स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है, आप सबसे पहले लाइन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे. उसके बाद आपके माउस पॉइंटर को स्टेज के वहां उस एरिया पे लेकर जाएंगे जहां पे आपको स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है. आपका जो भी माउस का पॉइंटर है वो एक एरो, प्लस साइन एरो में चेंज हो जाएगा. अब आपको ड्रैग करते हुए आपकी डिजायर्ड लेंथ तक आपको आपके माउस को ड्रैग करते रहना है. जितनी लेंथ आपको चाहिए, जैसे ही वो एक्वायर हो जाए आपको अपने माउस के पॉइंटर को छोड़ देना है. आपकी जो लाइन है वो आपकी स्टेज पर जैसी आपको चाहिए अपीयर हो जाएगी. इसके अलावा आप फ्री फॉर्म लाइन भी बनाना चाहते हैं तो वो भी कस्टम लाइन विद पेंसिल टूल से बना सकते हैं. दूसरा है फॉर ड्रॉइंग रेक्टेंगल, ओवल, सर्कल, राउंडेड रेक्टेंगल. Step 1, click on the tool as desired. Suppose to draw rectangle, click on rectangle tool, and to draw circle, click on circle tool. Step 2, click on the file color and hold down the mouse button. Step 3, the file color palette appears. Step 4, move the mouse pointer over the file color and release the mouse button when pointer changes from arrow to dropper. Step 5, drag to draw a shape as desired. Step 6, release the mouse button. Step 7, the shape will appear on the stage as desired. Similarly, you can draw the different objects and provide animation to them. अब अगर आपको rectangle, oval, rounded rectangle ऐसे चीजें ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले तो आपको उस टूल पे सिलेक्ट कर लेना है जैसा आपको शेप चाहिए. सपोज आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आप रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो आप सर्कल टूल पे ड्रॉ करेंगे, क्लिक करेंगे. इसके बाद आपको क्लिक करना है फाइल कलर पे और होल्ड डाउन करना है आपके माउस के बटन को. इसके बाद आपको फाइल कलर पैलेट पे आपके सामने अपीयर हो जाएगा. जैसे ही अपीयर हो जाएगा आपको अपना माउस पॉइंटर मूव करना है फिल कलर पे और रिलीज कर देना है आपका माउस बटन. जैसे ही आपका माउस पॉइंटर एक एरो में चेंज हो जाएगा, एरो टू ड्रॉपर. इसके बाद आपको अपने जो आपका पॉइंटर है, आपका माउस है, उसको ड्रैग करके लेके जाना है जैसी शेप आपको चाहिए. जैसे ही वो एक्वायर हो जाए आपको अपना माउस का पॉइंटर रिलीज कर देना है, आपके सामने वही सिलेक्टेड इमेज अपीयर हो जाएगी. सिमिलरली बाकी सारे ऑब्जेक्ट भी आपको ड्रॉ करनी है तो सिमिलर प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा. क्रिएट अ न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट. स्टेप 1, सिलेक्ट फाइल, न्यू, अ न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड. Step 2, select flash document option in the type list. Step 3, click on OK button. A new flash document will be created. अब अगर आपको नया फ्लैश डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, आप फाइल पे जाएंगे, उसके बाद न्यू पे जाएंगे, आपके सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा. इसमें आपको फ्लैश डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे सिलेक्शन करनी है आपके टाइप लिस्ट में, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना है, आपके सामने एक नया फ्लैश डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा. फिर आपका आता है मूवी प्रॉपर्टीज. व्हेन अ न्यू डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड इट ओपन्स विद द डिफॉल्ट सेटिंग्स फॉर द मूवी प्रॉपर्टीज. You can start creating a movie by following these steps. Step 1, select modify document. Step 2, the document properties window is displayed. Step 3, the options are shown in figure. Step 4, click OK button after you have specified all the options. The option make default, click to store the properties of the current document and apply them to all the newly created documents. अब अगर आपको प्रॉपर्टीज को, मूवी की प्रॉपर्टीज आपको कॉन्फ़िगर करनी है तो सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट पे. इसके बाद आपके सामने एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज विंडो डिस्प्ले हो जाएगी. इसमें आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे. आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है आफ्टर यू आर डन विद ऑल योर स्पेसिफिकेशंस. इसके बाद अगर आपको सेम टाइप की जो आपने एडिटिंग करी है प्रॉपर्टीज आपको बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में भी चाहिए तो सिंपली आपको मेक डिफॉल्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपकी प्रॉपर्टीज स्टोर हो जाएंगी करंट डॉक्यूमेंट में और उसके बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स में ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएंगी. द ग्रिड. The grid is the intersecting horizontal and vertical lines on the stage. It helps you to align objects in a particular position on the stage. The grid is helpful while creating graphics. By default, grid lines are not visible. The steps to turn on the grid are select view grid, show grid. You can edit the grid too by following the steps given below. Step 1, select view, grid, edit grid. Step 2, the grid dialog box appears. Step 3, click the drop down arrow of the color box to get the color palette to select the color of the grid lines. Step 4, choose snap to grid to align the edges of the graphics to the grid lines. Step 5, set the horizontal field to 15 pixels to separate horizontal lines by 15 pixels. Step 6,
Set the vertical to 15 pixel to separate vertical lines by 15 pixels. Step 7, set the snap accuracy to normal. Step 8, click OK. अब अगर आपको ग्रिड चाहिए, ग्रिड आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के बीच में इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, बाय डिफॉल्ट आपको ये दिखाई नहीं देती हैं और आपको ये प्रॉपर पर्टिकुलर पोजीशनिंग के लिए यूज करी जाती हैं। तो अगर आपको ये टर्न ऑन करना है, सिंपली आप व्यू ग्रिड पे सिलेक्ट करिए, उसके बाद शो ग्रिड पे जाइए तो ये ऑन हो जाता है, या फिर आप ग्रिड को एडिट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप व्यू पे जाएंगे, उसके बाद आप ग्रिड एडिट ग्रिड पे जाएंगे, आपके सामने ग्रिड डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। जैसे ही अपीयर होगा आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है, एरो पे, आपके सामने कलर बॉक्स आएगा। टू गेट द कलर पैलेट आपको अपना कलर सिलेक्ट कर लेना है ग्रिड लाइन का। सिलेक्ट करने के बाद आपको चूज करना है स्नैप टू ग्रिड, ताकि आपके जो ग्राफिक्स और ग्रिड लाइंस के एजेस हैं वो अलाइन हो जाएं। इसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल फील्ड को, इसके पिक्सल्स को आपको 15 पिक्सल्स में कन्वर्ट करना है, ताकि आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो 15 पिक्सल से सेपरेट हो जाएं। सिंपली आपको उसके बाद वर्टिकल लाइंस जो हैं उसको भी आपको 15 पिक्सल से सेपरेट करना है, ताकि आपकी वर्टिकल लाइंस के बीच में 15 पिक्सल्स का सेपरेशन आ जाए। इसके बाद आपको स्नैप एक्यूरेसी को नॉर्मल पे सेट करना है और एंड में आपको ओके पे प्रेस कर देना है। The property inspector. The property inspector is a panel that displays the properties of the selected object. This could include a text, an image, a line, a shape, or even a table. The list of the properties displayed in this panel will vary according to the object selected. For example, if a text is selected, the properties displayed will be the size of the text, font, alignment, etc. So you can view and change the properties as you work. अब आपकी प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर आता है। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर आपका वो पैनल होता है जहां पे आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज आपको शो करी रहती हैं। जैसे कि आपका इसमें टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, लाइन हो सकती है, शेप हो सकता है, यहां तक कि टेबल भी हो सकता है। तो इसकी जो लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको आपके पैनल में डिस्प्ले हो जाती हैं और ये वेरी करती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। फॉर एग्जांपल, आपने अगर एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है, आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि आपका साइज हो गया, टेक्स्ट का फॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट हो गया, वो आपको दिखने लग जाएगा और जैसे जैसे आप इसमें काम करते रहेंगे आप उसको व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स योर क्रिएटिंग फर्स्ट एनिमेशन. Flash uses a technique called animation to create a movement in an object. We all know how to draw images in Paintbrush or Photoshop. Similarly, by drawing stepwise images in Flash, we can set time of their occurrence and give them a moving effect called animation. There are various types of movement one can provide to the objects, such as fading image, blur effect, tween effect, ripple effect, motion effect, etc. Here are some of the effect given which can provide in Flash using different tools. तो इससे पहले कि हम Flash के अलग अलग टूल्स जाने, एनिमेशन सिंपली आपका वो होता है जहां पर आपका किसी भी चीज में ऑब्जेक्ट जो होता है वो मूवमेंट में आ जाता है, मूव करने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं एनिमेशन। इसमें आपकी अलग अलग पेंट ब्रश जो आप फोटोशॉप में यूज करते हैं, आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का क्रिएशन करते हैं। जैसे ही आप इन ऑब्जेक्ट्स को, यू मेक दीज ऑब्जेक्ट्स मूव, द मोमेंट यू मेक दीज ऑब्जेक्ट्स मूव, दिस इज कॉल्ड एन एनिमेशन। एनिमेशन के भी आपके बहुत सारे टूल्स होते हैं। आप इमेज को फेड कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, ट्रांजिशन लेकर आ सकते हैं, रिपल इफेक्ट ला सकते हैं, बहुत सारी चीजें ला सकते हैं। जैसे कि लेट्स हैव अ ब्रीफ स्टडी अबाउट देम। इफेक्ट्स, डिस्क्रिप्शन, मोशन ट्वीन इफेक्ट. Tweening is when Flash calculates the movement of an object between two or more keyframes based on the object's position on the keyframes. Tweening is a short term for in-betweening. There are two types of tween, motion and shape. Example, bouncing ball. Masking. Masking is a very useful technique in Flash. By applying a mask on a movie clip, you can restrict the visible area of the target clip to the mask area. Masking allows you to hide part of an object or text. It can be used for making spotlight kind of effects. Example, lightning of thunder effect in clouds. Fade effect, a transition effect. Fade means disappear. You can use this effect for any photo, listing, flash banner and header to fade them in or out or both. Example, showing sunrise or sunset using fade effect. Zoom effect, when you want to pay more emphasis on an image or text provided, can use zoom effect. You can apply zoom in and zoom out effect to the image to make it more visible or make a picture disappear. Example, car moving on a road. Blur effect. Blur effect is an effect which provides us a blurred image. Example, while watching TV, you might have noticed sometimes we can't see a face of a human being because an image is made a blurred. Ripple effect.
The ripple effect means providing a motion or animation to an image in water. Generally, ripple effect is provided to an image when water movement effect is to be shown. Example, people swimming in a pool. तो पहला है आपका motion tween effect. Tween short form है आपका in between का. इसमें आपके जो मूवमेंट्स होते हैं ऑब्जेक्ट के वो कैलकुलेट करे जाते हैं अगर वो 2 या उससे ज्यादा उसके की फ्रेम्स प्रेजेंट होते हैं बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन ऑन द की फ्रेम्स. तो ट्वीनिंग आपका इन बिटवीनिंग का ही शॉर्ट फॉर्म है. इसके बीच में आपके 2 टाइप्स के ट्वीन होते हैं, मोशन एंड स्पेस. जैसे कि आप जब बॉल को बाउंस बैक करवाते हैं तो उसमें आपके ट्वीनिंग इफेक्ट डाले जाते हैं. फिर आपका मास्किंग आता है. ये फ्लैश की एक बहुत ही यूनिक टेक्निक होती है जिसमें आपकी मूवी क्लिप पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे या फिर टेक्स्ट को आधा हाइड कर दिया जाता है. जैसे कि क्लाउड्स का जब आप थंडरिंग दिखाते हैं तो वहां पर आप मास्किंग का यूज करते हैं. फिर आपका फेड इफेक्ट आता है. फेड इफेक्ट आपका तब यूज होता है जब आपको ट्रांजिशन लेकर आना होता है. फेड मींस डिसअपियर. तो ये आपको फोटो में, फ्लैश बैनर में, हेडर में आप यूज कर सकते हैं. जैसे कि सनसेट और सनराइज अब दिखाना होता है तो आपका फेड इफेक्ट यूज करा जाता है. फिर आपका जूम इफेक्ट आता है. आपको किसी भी पार्ट पे जब ज्यादा एम्फेसाइज डालना होता है ताकि आप चाहें कि व्यूअर वो चीज ज्यादा एम्फेसाइज के साथ देखिए तो आपका जूम इफेक्ट यूज होता है. जैसे आपको अगर दिखाना है कि रोड पे बहुत सारी गाड़ियों के बीच में कौन सी स्पेसिफिक कार आपकी मूव हो रही है, जैसे मूवीज में भी दिखाते हैं, तो वहां पर आपका जूम इन इफेक्ट यूज होता है. फिर आपका ब्लर इफेक्ट आता है. जैसे कभी कभी जब आप टीवी भी देखते हैं तो कई जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देते उसके फेस, तो वहां पर आपका ब्लर इफेक्ट यूज होता है. रिपल इफेक्ट. रिपल इफेक्ट आपका हमेशा पानी की मूवमेंट दिखाने के लिए यूज करा जाता है जहां पे आपकी वाटर में मूवमेंट होती है. जैसे स्विमिंग पूल में जब आप स्विमिंग करते हैं तो आपकी वाटर वेव्स बनाती हैं, उनको बोलते हैं रिपल्स. नेक्स्ट इज ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग ऑब्जेक्ट. Grouping means joining every object present on the stage so that they can be dragged together like a single object. Ungrouping means keeping all objects differently so that they can behave differently. ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग जैसा आपको नाम सजेस्ट कर रहा है. ग्रुपिंग मतलब जब ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक साथ आप एक जगह पे कनेक्टेड टुगेदर रख लेते हैं. अनग्रुपिंग मतलब अलग अलग रखते हैं ताकि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की अपनी अलग बिहेवियर हो, अलग कैरेक्टरिस्टिक हो और उसी मैनर में वो बिहेव करे. टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स, click on modify menu and press group option to group the objects or press Ctrl plus G. To ungroup the objects, click on modify menu and press ungroup option or press Ctrl plus Shift plus G. अब अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना है, एक साथ डालना है, तो सिंपली आपको क्लिक करना है मॉडिफाई मेन्यू पे. उसके बाद आपको ग्रुप ऑप्शन पे प्रेस करना है टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स या फिर प्रेस कंट्रोल प्लस जी. अब अगर आपको अनग्रुपिंग करनी है तो आपको मॉडिफाई मेन्यू पे जाके अनग्रुप ऑप्शन पे प्रेस करना है या फिर शॉर्टकट आपका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी. Saving a flash document. The steps to save a flash document are: step 1, select file, save as. Step 2, the save as dialog box appears. Step 3, select the folder where you want to save your file. Step 4, type the file name in the file name box. Step 5, click the save button. अब अगर आपको आपके फ्लैश डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो सिंपली आप फाइल पे जाएंगे, उसके बाद आप सेव एज पे जाएंगे, आपके सामने एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. यहाँ पर आपको फोल्डर को सिलेक्ट करना है जहाँ पे अपनी फाइल को आप सेव करना चाहते हैं. उसके बाद फाइल नेम बॉक्स में आप उस फाइल का नाम लिख देंगे और एंड में आपको सेव पे क्लिक कर देना है, आपका फाइल सेव हो जाएगा. ओपनिंग अ फ्लैश डॉक्यूमेंट. द स्टेप्स टू ओपन एन ऑलरेडी सेव्ड फ्लैश डॉक्यूमेंट. स्टेप 1, सिलेक्ट फाइल, ओपन. Step 2, the open dialog box appears. Step 3, select the folder and the file. Step 4, click the open button. अब अगर आपको existing या saved document को open करना है, सबसे पहले आप फाइल पे जाएंगे, उसके बाद आप ओपन पे जाएंगे, आपके सामने ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. वहां पर आपको अपना फोल्डर सिलेक्ट करना है, फाइल सिलेक्ट करनी है और एंड में आके ओपन बटन पे क्लिक कर देना है, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी. To revise, Flash is a powerful tool created by Macromedia to develop interactive graphics which can be used for multimedia purpose. Flash is commonly used to create animations, advertisements, to integrate video into web pages, and more recently to develop rich internet applications. The file extension of a normal Flash file is .fla and of a compressed file is .swf. The menu bar makes the access of two different program features very easy. The property inspector is a panel that displays the properties of the selected object. Grouping means joining every object present in the stage so that they can be dragged together like a single object. We can group and ungroup the objects that we create.
तो फ्लैश आपका मैक्रो मीडिया का ऐसा एक पावरफुल टूल है जहां पर आप इंटरैक्टिव ग्राफिक्स बना सकते हैं, अलग अलग मल्टीमीडिया पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। रिसेंटली इसको इंटरनेट की अलग अलग एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। इसमें आपका जो फ्लैश होता है, नॉर्मल फ्लैश, वो आपका .fla एक्सटेंशन से सेव होता है और आपकी कंप्रेस्ड फाइल .swf से सेव होती है। इसके अलावा आपके बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिनको सीखना बहुत ईजी होता है, जिसके थ्रू आप एनिमेशंस बना सकते हैं। इसमें अलग अलग इफेक्ट्स भी होते हैं, आपके ट्विनिंग इफेक्ट होता है, रिपल इफेक्ट होता है, फेड इन इफेक्ट होता है, जिसके साथ आप इंटरेस्टिंग एनिमेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस आप खुद से करिए।